એક વખતની વાત છે, બે સૈનિક એક ટ્રેનમાં બેસીને વાત કરી રહ્યા હોય છે. એકનું નામ રમેશ અને બીજાનું નામ રાહુલ હતું. રમેશ રાહુલને કહે છે કે રાહુલભાઈ, તમે મને ઘણા ટાઈમથી આર્મીમાં છો, તો મને એક વાર્તા સંભળાવો ને. તમારા આર્મીની વાર્તા સાંભળવામાં થોડો ટાઈમ જતો રહેશે, હજુ આખી રાત પડી છે. રાહુલ તરત હસીને બોલે છે કે તમે પણ એક સૈનિક છો અને વાત કરો છો કે કહાની સંભળાવો. સેનાના દરેક દાડા એક ટાઈમ કહાની જ હોય છે, એટલે પછી તો તમે કહો છો તો કહી દઉં, એમ કહે છે. આવું કહીને રાહુલ એક કહાની સંભળાવે છે. રામવીર નામનો એક સૈનિક હતો. રામવીર દેશભક્ત અને બહાદુર હતો. રામવીરને દેશ સિવાય બીજું કશું સૂઝતું નહોતું. હર રોજ દેશભક્તિની વાત જ કરતો હતો તે. રાહુલ તરત બોલે છે કે તમારી વાર્તા લાગે ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, બહુ મસ્ત વાર્તા લાગે છે, તમે મને સંભળાવો ને. પછી શું થયું? પછી તરત રાહુલ હસીને બોલે છે કે રામજીની કહાની જેવી છે કે તમે સાંભળીને હજુ સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરશો. રામવીર પોતાના દેશને બહુ પ્યાર કરતા હતા. એક દિવસ રામવીરને એક ગામમાં આતંકવાદી છુપાયેલા તેવી ખબર મળે છે. આ સાંભળીને રામસિંહ પોતાના શૈતાન દોસ્તને કહે છે કે शैतान सिंह, मुझे अभी खबर मिली है, कुछ गांव में गुंडे छुपे हुए हैं. એના પહેલાં કે કોઈ એની જાન લઈ લે એના પહેલાં આપણે તેમને મારવા પડશે. રામવીરની વાત સાંભળીને શૈતાનસિંહ હસવા લાગે છે અને પછી બોલે છે કે તમે કેવી વાત કરી રહ્યા છો રામસિંહ? આપણા હોવાથી કોઈની તાકાત છે કે આપણા દેશમાં આવી શકે? મને લાગે છે કે તમને જૂઠી ખબર મળી છે. मुझे नहीं पता है खबर झूठी है या सच्ची, लेकिन मैं इस गांव में जरूर जाऊंगा. तारे आवू हो तो आव, नकर कोई नहीं, હું જાઉં છું. શૈતાનસિંહ કોઈ એના પહેલાં તો તે રામસિંહ ગાડી લઈને આગળ નીકળી જાય છે. ગામના બહાર જઈને ચિલ્લાઈને કહે છે કે આતંકવાદીઓ, તમે મને ખબર છે ગામમાં હંતાયેલા છો, તો સામે આવો. તમે બચવા માંગતા હોય તો હથિયાર નેઠા મૂકો પરા અને સરેન્ડર કરીને બહાર આવી જાઓ, નકર ચૂનીને મારશું. પરંતુ રામસિંહની અવાજ સાંભળીને આતંકવાદી ગોળી ચલાવવા લાગે છે. રામવીર પણ સામે ને સામે ગોળી મારે છે અને હસે છે કે હું હજુ સુધી કહી રહ્યો છું કે તમે બચી નહીં જઈ શકો. એના પહેલાં હું તમને તડપાવીને મારું, બહાર આવી જાઉં. પરંતુ રામવીરને બોલવાનો કોઈ ફરક પડતો નથી. આતંકવાદીઓ ઉપરને તે ગોળીઓ ચલાવતા જ રહે છે. રામસિંહ પણ સામનો કરી રહ્યા હોય છે બહાદુરીથી. એક ગોળી અચાનક રામસિંહના પીઠ પર આવીને લાગે છે અને તેમને ये गोली किसने चलाई, वो भी पीठ पर? કોણ છે? શૈતાનસિંહ હસી રહ્યા હોય છે અને પછી કહે છે કે આ ગોળી મેં મારી છે તને મારવા માટે, અને હસે છે જોરથી. શૈતાનસિંહ બેસીને રામસિંહ ચકિત થઈ જાય છે અને કહે છે કે તે અને ગોળી મારા ઉપર કેમ ચલાવી? તું તો મારો ભાઈ છે, દેશ સામે ગદ્દારી કેમ કરે છે? તું કેટલો ભોળો છે રામસિંહ. હું કોઈ દેશભક્ત નથી, હું એક આતંકવાદી છું. હું બીજા દેશનો એજન્ટ છું, ખાલી તમારી સેનામાં કામ કરી રહ્યો છું. मैं काम कर रहा हूँ, चल अब तेरे मरने का समय आ गया. ऐसा कहकर शैतान सिंह रामवीर के सर के बीच में गोली मार देता है. रामवीर मर जाता है. ये बात सुनकर रमेश कहता है, फिर क्या हुआ? उस दुष्ट शैतान सिंह का क्या हुआ? क्या वो पकड़ा गया था? वो मुझे मिल जाए तो मैं उसकी जान ले लूं. रमेश भाई, अभी कहानी पूरी कहाँ हुई है मेरी? इसके बाद तो रामवीर की कहानी शुरू होती है. दरअसल रामवीर को मारने के बाद शैतान सिंह वहां से चला जाता है. बारिश बड़ी जोरों से हो रही होती है. तभी एक चमत्कार होता है. रामवीर की आत्मा रामवीर के शरीर से निकलती है. अरे, मैं तो जिंदा हो गया. मैं अब अपने देश के दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगा. लेकिन तभी उसकी नजर अपने शरीर पर पड़ती है और वो दुखी हो जाता है. लगता है मैं मर गया हूँ और ये मेरी आत्मा है. लेकिन चलो, अच्छा है, कम से कम मैं उस दुष्ट शैतान सिंह से अपनी मौत का बदला ले सकूंगा. ऐसा कहकर रामवीर की आत्मा शैतान सिंह को मारने के लिए निकल जाती है.
शैतान सिंह अपने आतंकवादी दोस्तों के साथ होता है। बड़ा आया था देशभक्त बनने, मार डाला हमने उसे। इसके जैसे और जितने भी हैं उन्हें चुन चुन कर मरना है, फिर तो ये देश अपना है, अपना। सही कह रहे हो शैतान सिंह, हमसे कोई जीत नहीं सकता। पहले हम ये रामवीर जैसे देशभक्तों को मारेंगे और फिर इस देश पर कब्जा करेंगे। उन सब की बातें सुनकर रामवीर की आत्मा को गुस्सा आ जाता है और वो उन तीनों से बोलता है, तुम तीनों चूहे इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम कितनों को मारोगे? इस देश का तो एक एक आदमी देशभक्त है। ऐसा कहकर रामवीर की आत्मा उन दोनों आतंकवादियों को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है और मार डालती है। अपनी मौत को सामने देखकर बोलता है, मुझे माफ कर दो रामवीर, मैं पैसों के लालच में आ गया था। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। वो तो मुझे भी पता है कि तू कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि आज के बाद तू ऐसा कुछ करने लायक ही नहीं रहेगा। ऐसा कहकर रामवीर की आत्मा शैतान सिंह को मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। रामवीर की कहानी सुनने के बाद रमेश राहुल से कहता है, फिर क्या हुआ? क्या शैतान सिंह को मारने के बाद रामवीर की आत्मा इस दुनिया से चली गई? क्या हुआ फिर उनका, बताओ ना। मुझे पता था कि तुम रामवीर के बारे में और जानना चाहोगे, उनकी कहानी ही ऐसी है। इससे पहले राहुल आगे की कहानी बताता ट्रेन के अंदर 3 बंदूकधारी गुंडे घुस जाते हैं और उन दोनों से बोलते हैं, फौजी, दोनों मुंह बंद करके चुपचाप बैठो। हमने इस ट्रेन को अगवा कर लिया है और इसे लूट रहे हैं, समझे? ये क्या बकवास है? अगर तुम तीनों ने अपने हथियार डालकर अपने आप को हमारे हवाले नहीं किया तो तुम तीनों नहीं बचोगे आज। गुंडे की बात सुनकर राहुल को गुस्सा आ जाता है और वो एक गुंडे को उठाकर पटक देते हैं। गुंडा जोर से नीचे गिरता है। मर गया रे, मेरी कमर तोड़ डाली इस फौजी ने। अबे गधो, शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? मारो इसे। गुंडे की बात पर बाकी के दोनों गुंडे राहुल पर गोली चलाते हैं, लेकिन सारी की सारी गोलियां राहुल के शरीर के आर पार हो जाती हैं। ये देख रमेश और गुंडे हैरान हो जाते हैं। तभी राहुल के शरीर से रामवीर की आत्मा बाहर निकलती है और उन तीनों गुंडों को पटक देती है। तुम दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैं हूँ, शहीद सैनिक रामवीर, और मेरे रहते सेना के जवानों को कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। राहुल और रमेश रामवीर की आत्मा को सैल्यूट करते हैं। तुम राहुल से पूछ रहे थे ना रमेश, मैं कहाँ हूँ? अभी मैं इसी दुनिया में हूँ, और जब जब मेरे देश को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वापस आऊंगा। हाँ, वापस आऊंगा। ऐसा कहकर रामवीर वहाँ से चला जाता है और राहुल और रमेश उन तीनों गुंडों को अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले कर देते हैं।